Hello everyone. So as you know that I'm doing thermodynamics previous year questions from exams like GATE, IES and IAS. Okay. Today we'll see the questions of IAS exam. Okay. So earlier, in the IAS exam as well, in the prelims there was optional. So they were asking if you're choosing optional for the prelims as a mechanical engineer before 2010. Okay. Nowadays this is not there. So there were the question from the mechanical engineering MCQs question. So those question I'm talking about. Okay, some people can confuse IAS में कहाँ mechanical prelims में आता है, but पहले होता था, अभी नहीं होता. Okay, so those question we need to deal because these question very conceptual and these question directly coming in the various examinations like state engineering services or engineering services or whatever exams you are writing like mechanical engineering. For the mechanical engineer, you might get question from these question which already came. Okay, I will not say the same question, but the concept they use because I have seen lot of question. Okay, so that's why I have taken these questions as well. Okay, so anyway, we are dealing the first law of thermodynamics. Fine. This is about myself. I did master from IIT Bombay. I am the former mechanical engineering professor. Okay, so let's see some of the question from the IAS exam from the first law of thermodynamics. Okay, so we'll read this question. You can see this IAS 2003 question. You will not find question after 2010 for the IAS exam. These are all the question before 2010. A system executes a cycle during which there are 4 heat transfer Q1 to 220 kilojoule, Q23 minus 25 kilojoule, Q34 minus 180, Q41. मतलब cycle दिया 1 2 3 2 3 3 3 4 4 4 1. The work done during the 3 of the process is this. Okay, 3 process के लिए work done दिया हुआ है. Work done for the 4th process they will ask. Okay, so these are the options. Okay, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं यूज़ करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करना. उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? टोटल हीट विच विल कन्वर्ट इनटू टोटल वर्क डन. दैट्स इट. whatever heat supply it will convert into work done. Okay, ideal केस में यही होता है. ठीक है. So the summation of total heat is equal to summation of total work. तो चारों साइकिल के लिए जो हीट है उसको ऐड कर दीजिए. Okay, you can see here they have added 220 minus 25 minus 180 and 50, and they have added the work done as well for all 4 processes. So this and this and 4-1. Okay, so 4-1 का निकालना हमें पता नहीं है, just add 15 minus 10 plus 60. Okay, तो ये आपका एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया जिसमें अननोन है W41. You can just simplify for W41. Okay, if you simplify you will get 0. Okay, answer is B. अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, स्पेशली इन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पीपल. ऐसा आई विल नॉट से ऑलवेज इज ट्रू, बट 95% और इवन 99% टाइम if 0 is given in the option, okay, that might be the answer. Again I'm saying might be the answer. If you know how to solve the problem, you can solve the problem and just get the 0 answer. But if you don't know the answer, if you don't know how to solve the problem and if 0 is the option, 0 is one of the option, okay, you just take a small risk and just take that. Okay, 1 नंबर वाला है तो पक्का लो. गेट में 2/3 माइनस मार्किंग होता है 2 नंबर वाले में, थोड़ा सा रिस्की होता है. बट इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड इफ़ यू फील दैट ओके मेरा अगर 1-2 नंबर कट जाता है तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन जस्ट टेक दैट. अगेन आई एम नॉट सेइंग यू डू दैट, इट इज़ अप टू यू, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ क्वेश्चन वेयर if 0 is the answer, 0 is the answer. 0 is in the option, then 0 is the answer.
ठीक है, बट मैंने कुछ केसेस देखे जहाँ पे नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए होता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम इज देयर. सो इट इज़ अप टू यू. आई एम नॉट सेइंग टू यू यू जस्ट go with that, but you can go, you can take that. It's up to you. Okay, fine. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 साइकिल दिया हुआ. एक तो जस्ट 1 सेकेंड. देखिए यहाँ पे 2 साइकिल दिया, UWVR एंड TPS. ओके, अब यहाँ पे यू नो 2 idle heat engine cycles are represented in the given figure. Assume VQ is equal to VQ is equal to QR. ओके, ये दोनों बराबर हैं. एंड PQ is equal to QS. PQ is equal to QS. ओके, UP is equal to PR. UP is equal to PR. ठीक है, मतलब ये जो दोनों मिल रहे हैं ये सब बराबर है. ओके, इफ़ वर्क इंटरेक्शन फॉर द रेक्टेंगल, इसके लिए वर्क इंटरेक्शन दिया हुआ है. ठीक है, फिर पूछ रहा है ऑब्वियसली दूसरे वाले साइकिल के लिए पूछेगा. देन द वर्क इंटरेक्शन फॉर द अदर साइकिल, ये वाले साइकिल के लिए पूछ रहा है. ठीक, इसके लिए वर्क इंटरेक्शन दिया हुआ है, इस वाले के लिए पूछ रहा है हमसे. ठीक है, अब ये हमारे ऑप्शंस हैं. देखिए 2001 में आया हुआ है. अब देखिए ये जो दिया हुआ है ना, इसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी होगी कि जो अगर आप ये उठा के, अगर देखिए ये दोनों बराबर हैं, देखिए अगर ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है. ठीक है, तो आप अगर इसको ऐसे कट करोगे ना, तो ये ट्रायंगल इसमें फिट हो जाएगा. देखने से नहीं लग रहा है. दिस इज एक्चुअली इसका हाफ पार्ट ही तो है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका जो एरिया होगा ये इट विल बी द हाफ ऑफ ये जो हमारा रेक्टेंगल है वही होगा. बस देखने से ही लग रहा है. ठीक है, और यहाँ पे ये सब ये जो दे रहा है ना, ये भी एक क्लू है ये इस चीज़ के लिए कि दिस इज़ एक्चुअली यू नो, अब ये इसके ये बराबर है, तो क्या ये इसमें फिट नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है फिट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा इट विल बी द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ठीक है, बस हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ये इसका 48 दिया हुआ है, तो हमारा 24 हो जाएगा. आंसर सी हो जाएगा. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है. आंसर विल बी सी. वी जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग. ओके, ठीक है. आईएएस में कितने सिंपल क्वेश्चंस आते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 में आया हुआ है. और रेक्टेंगुलर हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर delivers a work output of 54 kilojoule while it reject heat of 66 kilojoule. Then efficiency. अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? 0.45, 0.66, 0.77, 0.75, 0.82. So what is efficiency? Efficiency क्या होता है? वर्क डन बाय हीट इनपुट, वही तो efficiency होती है. तो वर्क डन कितना, वर्क आउटपुट कितना. देखिए अब हीट इनपुट कितना होगा इसका, वर्क आउटपुट प्लस हीट रिजेक्टेड, और वर्क आउटपुट कितना दिया हुआ 54 दिया हुआ. ठीक है, और हीट इनपुट इन दोनों को ऐड कर देंगे. फाइन. ठीक है, सो 54 बाई 54 प्लस 66 0.45. आंसर इज ए. ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट फिर से देखिए, इसमें भी इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी पूछेगा. इफ अ हीट इंजन गिव्स एन आउटपुट ऑफ 3 किलोवाट, सॉरी, व्हेन द इनपुट इज 10,000 जूल पर सेकंड. जूल पर सेकंड इज द वाट. ओके, देन द थर्मल इफिशियंसी इज ऑफ द इंजन विल बी. ठीक है, कुछ नहीं, देखिए वही है. थर्मल इफिशियंसी इज W/Q. ठीक है, जितना हीट सप्लाई हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है उससे, तो हमारा या हमें ठीक है कितना वर्क हो रहा है, तो दैट यू नो रेशियो इज द इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी. अब यहाँ पर हीट सप्लाई दिया हुआ है,
ओके, हीट इंजन गिव्स आउटपुट, देखिए आउटपुट 3 किलो, ये वर्क डन है, हीट इनपुट इतना है, ठीक है। सो 3 इंटू 10⁻³ वाट, ये जूल पर सेकंड वाट ही होता है, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट 0.33 और 30%। ओके, आंसर इज पी। कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, एकदम सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an adiabatic process 5000 joule of work is performed on a system. The system returns to its original state while 1000 joule of heat is added. Okay, the work done during the non-adiabatic process is so these are the options. देखिए फिर से इसमें देखिए एक साइकिल के लिए देखिए अब इसमें इन एन एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है, ठीक है। वर्क डन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे वहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर रहा है, सो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, एडियाबेटिक के लिए 0 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे वर्क इज परफॉर्म ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। ओके, सो यू विल गेट इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज 5000 जूल। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल while heat added, no heat while 1000 heat is added, ठीक है। अभी सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेन इतना हीट इसको ऐड किया जाता है। अब उस केस में पूछ रहा है कि वर्क डन हमारा कितना होगा, एंड ये जो है नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस, इस केस में नॉन एडियाबेटिक है, ठीक है। तो फिर से हमें लगा देना होगा दूसरे साइकिल में, ओके, 2 to 1, और लाइक पहले 1 to 2 हो रहा है, फिर वापस आ रहा है 1000 करने पे, 1000 हीट ऐड करने पे, बट दैट इज नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। बट अब देखिए हमारे से 2 to 1 है, तो यहाँ पे डेल्टा यू जो होगा 1 to 2 हो जाएगा, ये सब थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ओके। एंड दिस इज 2 to 1, सो नाउ हमें डब्ल्यू 2 to 1 निकालना है, सो क्यू 2 to 1 माइनस u1 माइनस u2, ठीक है। सो ये दिस इज गिवन 1000, ऐड किया जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, एंड दिस विल बी 5000, ठीक है। 5000 दोनों का ऐड कर दो, यू विल गेट 6000, इसका आंसर हो जाएगा प्लस 6000, ठीक है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट लॉ में ऐसे ही होता है, 2 बार फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, एक बार कुछ नहीं दिया रहेगा वो निकाल लेंगे, जो निकलेगा वो दूसरे वाले के लिए कॉमन होगा, स्पेशली इंटरनल एनर्जी ही कॉमन होती है, ठीक है। वो थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगी सिस्टम की, वो तो सेम ही रहेगी, वो उसको फिर दूसरे वाले के लिए यूज़ कर लेंगे बस। फिर से देखिए वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्रोसेस द हीट एंड वर्क आर एज फॉलोज, ओके। सो हीट हमारा इतना दिया हुआ है 4 प्रोसेस के लिए, वर्क इतना दिया हुआ, तो थर्मल एफिशिएंसी पूछ रहा है, ओके। एंड दीज आर द ऑप्शंस, देखिए 1996 में आया हुआ है। तो देखिए नेट वर्क आउटपुट क्या होगा, जोड़ दो सबको, ऐड कर दो, जस्ट ऐड दैट ऑल, यू गेट 5 यूनिट। हीट एडेड कितना है, देखिए जो प्लस वाला होगा ये और ये वो ऐड हुआ है, जो माइनस वाला होगा वो निकल रहा है। तो हीट सप्लाई, जो वर्क डन बाय हीट सप्लाई, जो हीट सप्लाई करते हैं वो लाइक W बाई हीट सप्लाई, दैट विल गिव द एफिशिएंसी। तो इसमें पॉजिटिव हीट कौन सा है, 30 एंड 5, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दिस इज हीट एडेड दैट इज 35, ठीक है। बस अब एफिशिएंसी इज W बाई Q, Q एडेड, बस अब डिवाइड कर दो 5 by 35 into 100, विल गेट 14.33, सो द आंसर इज C। ओके, मैच लिस्ट का टरबाइन, अब इसमें या डिवाइस थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, टरबाइन, नोजल, वॉल्व, कंप्रेसर। अब देखिए ये सारे SFEE इक्वेशन से ही आते हैं, ओके। जब मैं
थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारे इक्वेशन सारे डिवाइस के लिए ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वहाँ पे, तो जब लेक्चर सीरीज़ करेंगे तो वहाँ पे ये सब मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ WH2 माइनस H1 बॉयलर के लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन में देखे थे इससे पहले, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक इससे पिछले वाली वीडियो में देखे थे। ओके, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 एंड W इज इक्वल टू H1 माइनस H2। अब देखिए, जो टरबाइन होता है ये H1 माइनस H2 होता है, ठीक है। नॉजल ये होता है, नॉजल में ऑब्वियसली बट वेलोसिटी रहेगी, सो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई V स्क्वायर बाई 2, बार बार V2 आ रहा है। वॉल्व, ठीक है, ये थ्रॉटल डिवाइस भी बोलते हैं। H1 इज इक्वल टू H2 हो जाता है एंड कंप्रेसर जस्ट रिवर्स ऑफ टरबाइन होगा, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। टरबाइन का H1 माइनस H2 है तो कंप्रेसर का H2 माइनस H1 हो जाएगा। ओके, सो द आंसर इज सी। ये जो वॉल्व को थ्रॉटल वॉल्व भी बोलते हैं, सो उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ सम ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम IAS एग्जाम। विल सी more problems, okay.